Basic theoretical question, just read once. What are the characteristics of depreciation? Depreciation is the process of allocating cost of tangible assets to expense over its estimated useful life in a systematic manner. Sir, मतलब for example 10 लाख की मशीन है, आपने तो एसेट मान लिया, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा करके सिस्टमैटिकली डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में राइट ऑफ करेंगे. राइट ऑफ करेंगे मतलब it will be treated as an expense gradually. Clear? So it is a process of writing off or apportionment of expense. Sir, why only tangible assets? Intangible assets? Intangible assets की वैल्यू भी गिरती है, उनके लिए टर्म दूसरी यूज होगी, अभी आ जाएगा another 15-20 minutes. Amortization, depletion, ये सब अभी हम सुनेंगे. तो depreciation term is used for tangible assets which have a physical existence. Intangible assets also depreciate. Depreciate is not the correct word for intangible assets. They also lose their value, but that is termed as amortization. आएगा अभी. So depreciation, it reduces the book value of the fixed asset except freehold land. Sir, ये freehold land क्या होता है? आपने तो land बताया. Land, freehold land मतलब आपकी land. एक होती है लीज होल्ड लैंड, पहले भी आया था टर्म लीज होल्ड लैंड, मतलब आपने लीज पे ले रखी है, आपने लॉन्ग टर्म रेंट पे ले रखी है, वो अलग चीज होती है दोनों फिक्स्ड एसेट. लीज होल्ड, लीज एक्सपायर हो जाती है. लीज क्या होती है? लीज एक टर्म के लिए होती है. लीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक रेंट एग्रीमेंट है, बट लॉन्ग टर्म 10 साल की लीज, 15 साल की, तो वो तो एक्सपायर होगी ना, तो वो डेप्रिशिएट होती है. एक फ्री होल्ड लैंड, आपके नाम पे जमीन है, वो डेप्रिशिएट नहीं. ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एवरी ईयर बिकॉज द बुक वैल्यू इज रिड्यूस्ड. आप यूज करें या ना करें, either due to its use or passage of time. It occurs gradually unless there is a quick physical deterioration or obsolescence due to technological developments. It is not a process of valuation of fixed asset, ध्यान से देखेंगे, but accounting of expense each year. कह रहे हम asset valuation नहीं कर रहे कोई, हम तो एक expense को account for कर रहे हैं every year, but it definitely helps in showing the asset its correct, in showing the asset at its correct value also. But primary objective is to, depreciation is the process of allocating cost to expense. कह रहा asset थोड़ा थोड़ा आप यूज करते जा रहे हैं, उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट होता जा रहा है, तो what portion should be treated as an expense? That is depreciation. Okay. The term depreciation is used for tangible fixed assets such as building, plant, machinery. In case of wasting assets, the term used is depletion, and in case of intangible assets, the term used is amortization. अभी हम अलग से इस पे डिस्कशन करेंगे. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हियर. ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, amortization, डिप्लीशन, तब हम डिस्कस कर लेंगे पूरा. Depreciation for tangible assets, depletion for wasting assets, and amortization for intangible assets. Depreciation is a non-cash expense. Journal entry ही क्या है depreciation की? Very good. Depreciation account debited to fixed asset. Depreciation to fixed asset. इसमें कहीं कैश इन्वॉल्व हो रहा है? नो, हम किसी को पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं, एक्सपेंस है, बट इट इज अ नॉन कैश transaction, non-cash expense. There is no outflow of cash at the time of charging depreciation. आप एसेट खरीद चुके हो, जो पैसे जाने थे जा चुके हैं, अब तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री हो रही है. Depreciation is an indirect expense. Indirect expense. Therefore, it is transferred to the debit of P&L account. Debit of P&L account जाता है, ये तो हमने बता दिया. फिर ये indirect expense क्या होता है? चलो सुन लो, ध्यान से देखो. एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं. एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं?
expenses relating to purchase or manufacturing of goods, गुड्स खरीदने या गुड्स बनाने से रिलेटेड खर्चा. एग्जाम्पल, परचेजेस, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, सब क्या है? इनवर्ड्स वाले. इनवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस. सेम खर्चा आउटवर्ड्स भी होगा. क्या तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आ रहे. आउटवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स. इनवर्ड मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस. अब ध्यान से देखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा. फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस किसके लिए? अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है? सामान खरीदती है, बेचती है, तो परचेज से रिलेटेड खर्चा. डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? जो चीज जिसमें आप डील कर रहे हैं उसको खरीदने से रिलेटेड खर्चा या उसको बनाने से रिलेटेड खर्चा. कोई डाउट? all expenses other than direct expenses. All expenses other than direct expenses. Direct expenses के अलावा जो भी खर्चा है वो सब इनडायरेक्ट होता है. एग्जाम्पल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट, अनलिमिटेड है लिस्ट. ठीक है ना? तो समझना क्या है कि डायरेक्ट क्या है, क्योंकि बाकी सब तो इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपका इंटरेस्ट है वो भी. ठीक है? तो बस ये बताने की कोशिश थी कि डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ये कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होगा? while preparing financial statements. यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए depreciation is an indirect expense, therefore it is shown on the debit side of profit and loss account. Okay, कोई doubt?